today we are going to talk about uh, the constitutional amendments in 1973 Constitution. Uh, Amendments, Constitution, our Constitution is a rigid Constitution. Rigid Constitution means to bring any kind of change in the content and the context of the Constitution require the consent of the stakeholders. Consent of the stakeholder required है इसको लाने के लिए, and consent of the stakeholders involved means Pakistan is a federal state, and federal state के अंदर constitution used to be very rigid, and rigid means to bring change in the content and the context of the constitution is not a easy process. ये easy process नहीं है. तो इसके लिए the federating units, they are also supposed to give their consent, and with reference to the population proportion, these federating units, they are having their due representation in the lower house of the assembly. Means representations are given on the basis of the proportional population in the lower house में दिया गया, and upper house of the legislature is having their equal representation. तो ये दोनों हाथ, so it means the federating units, they are having their due representation in the lower house and in the upper house of the legislature, the National Assembly of Pakistan, Parliament of Pakistan. अब rigid constitution required that every stakeholder must be given on board होना चाहिए. अब unfortunately होता क्या है, some of the political parties, they have their parliamentary representations, and some of the political parties, they don't have their parliamentary representation. When we are going to fix the phenomena of bringing some change in constitution with reference to the representation in the parliament, then it means that there would be many sections in our country which would not be having their consent attached with the change that we are willing to bring in our constitution. So if any kind of change is required, that not only the parliamentary parties but also the non-parliamentary parties, they also be taken into confidence. Only then a change in the foundation is more desirable and required. And if in parliamentary politics, what happens that if a majority party, that majority party is going to win the election, and on the basis of the majority, the winning party is going to bring change in the context and the content of constitution, then ultimately what would be happening? There would be many sections in our country which will not be having their consent or their demands being accommodated. This thing results in conflict of the theory and practice, and this we think have seen again and again in our constitution from 1973 onwards. तो ये हुआ है, इस वजह से whatever the constitutional amendments were being brought in our constitution, in one way or the other, they always left some sections of the society jinke demands they were not being incorporated. That's why new amendments were deemed desirable and required. अच्छा याद रखिएगा, like American Constitution, like British Constitution, Pakistani Constitution is basically a living constitution. A living constitution means it is continuously changing as per the change in environment, social, political, cultural, and economic environment, as well as the change in the political dynamics, demographical dynamics. Means it is adaptable with reference to the changing जो है change which are coming in society. So society is changing, constitution is changing. So with reference to this thing, our constitution is a living constitution and organic constitution. It is not rigid in a sense that it cannot be changed. Yes, of course it can be changed, but when the 2/3 majority of the society demand would be taken into consideration. अब how to bring change in constitution? अब change कैसे आती है constitution में? Basically,
चेंज यूजुअली क्या किया जाता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से आती है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से चेंज आती है। ये दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस पार्लियामेंट इज गोइंग टू डिसाइड दैट वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमने क्या देखा है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स के तहत चेंजेस कम आई हैं, बट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस ज्यादा आई हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत मतलब क्या है, I you know this fact very well के if our country has the life of almost 72 or 73 years, but before Pakistan People's Party age in 2008 क्या देखा था कि we have seen uh, more rule of military dictators on our country. So whenever there used to be any military dictator, that military dictator usually prefers the presidential system because presidential system revolves around the pivot point of our personality. Dictator जो होता है, dictator used to have no political base. That's why every dictator tries to have more and more power accumulation in his hand. So जो हमारे जो 27 ये जो 17th अमेंडमेंट तक ये जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके बाद 18th अमेंडमेंट एंड नाउ अप टू नाउ 25 अमेंडमेंट्स, वर्किंग फंक्शनल अमेंडमेंट्स। वैसे तो मैंने दो जगहों पे डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं कि एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि टोटल 30 अमेंडमेंट्स वर बीइंग प्रपोज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और एक जगह पे मैंने पढ़ा है टोटल 34 अमेंडमेंट्स they were being proposed in the context of our constitution, content of our constitution. जो भी फिगर लें, out of 30 or 34 proposed amendments, 25 amendments they are in working conditions, they are in operational conditions in our constitution. तो ये जो proposed conditions थी, the proposed amendments थी, in one way or the other they were either being approved by the lower house or they were being approved by the upper house, but they were not being approved by the whole parliament with 2/3 majority, and ultimately it was being ratified by the president of Pakistan. तो ये एक प्रोसेस है जो होना चाहिए। अच्छा याद रखिएगा, मैंने आपको एक बात बताया कि when it comes a matter of issue of national importance के पार्लियामेंट के अंदर the treasury benches and the opposition benches, they are having their consent that we have to bring some change in the कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ठीक है, उस वक्त हो जाता है, 2/3 मेजोरिटी से होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स अ मैटर ऑफ द ब्रिंगिंग सम चेंज इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, तो उसके लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट कि 2/3 मेजोरिटी इज आल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज विलिंग टू ब्रिंग सम चेंज इन द ज्योग्राफिकल यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब is having the 60% population of the whole country, and according to the administrative requirement, this Punjab must be divided into at least 8 or 12 other provinces में होना चाहिए। And if the central government is willing to bring some change in the geographical limits of Punjab, then Punjab legislature is required to pass that bill with 2/3 majority. तो ये एक दो प्रोसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू के ऊपर यू कैन डू विद इट, लेकिन अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है दैट इज मोर स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो 2/3 मेजोरिटी से सिंगल हैंडली कर सकती है। लेकिन अगर नेशनल बाउंड्रीज की लिमिटेशन चेंज करनी है, पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर कोई चीज को करना है, या लैंग्वेजेस को नेशनल स्टेटस देना है, तो वो उससे रिलेटेड वो रिक्वायर करता है, यानी कि जो आपकी जो फेडरेटिंग लेजिस्लेचर है, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव 2/3 देयर कंसेंट विद 2/3 मेजॉरिटी। तो मैं बात कर रहा था कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज अ मोर डेमोक्रेटिक वे ऑफ ब्रिंगिंग सम अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, देयर आर ऑलमोस्ट 24 टाइम्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत amendments they are being proposed
in our constitution, and only 10 times act of the parliament ने amendments को propose किया in our constitution. So 24 times, अगर there are 34 proposed amendments, 24 times presidential order created amendments in our constitution or proposed amendments in our constitution, and 10 times act of parliament proposed amendments. अब ये presidential order के तहत क्या है? For instance, ये जो 8th amendment थी by जनरल ज़ियाउल हक, उसके अंदर उसने already एक sort of constitutional provisional order या legal framework order की तरह एक order जारी किया था जिसको कहते थे reformation of constitution in its original. एक act उसने पास किया था around in 1885 या उसके दरमियान. तो उसको फिर वो तो क्योंकि ऑर्डर था और ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 6 महीने के बाद एक्सपायर होना होता है, तो फिर ये कॉन्सेंट लेना होता है पार्लियामेंट से. तो प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का ड्राफ्ट प्रपोज कर दिया एंड देन फोर्स ने पार्लियामेंट को फोर्स किया टू गो फॉर इट, इसको करें और इसको अप्रूव करें. अच्छा, ये जरूरी नहीं है, वी शुड नॉट बी वेरी नैरो इन आवर स्कोप के always dictator wanted to bring this change in constitution. Some of the times democratic president जो थे उन्होंने भी order propose किया, and then meanwhile democratic जो powers थी, they went for consensus and ultimately within the specific time frame that order was presented in the parliament, and then this is how के उसको पास कर लिया गया. लेकिन मैंने आपको कहा इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स दे आर मोर डिजायरेबल, दे आर मोर रिक्वायर्ड टू गो फॉर. अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत करेंगे अगर हम, तो उसके अंदर कोर्जन इज इन्वॉल्व्ड, एंड दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्विस्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफॉर्म्ड. ये मैं असल में ये जो चीज मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? कोई चीज अगर कोई बात करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, प्लीज लेट मी नो. सर, ये मैंने एक पूछना था. आपने एक लाइन बोली थी स्टार्ट में, सोसाइटी इज चेंजिंग और कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंजिंग. सर, व्हाट इफ हमारी सोसाइटी सेकुलरिज्म की तरफ जाए तो? हाँ, तो बिल्कुल अल्टीमेटली तो जो सोसाइटी इज गोइंग टुवर्ड्स द सेकुलरिज्म एंड मोर सेकुलर टेंडेंसीज कमिंग इन सोसाइटी में अगर आ रही है, तो वो सोसाइटी जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आएंगी वो भी सेकुलर होंगे. तो अल्टीमेटली उसी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज हो जाएगा. लेकिन हो क्या रहा है, हाँ, जो सोसाइटी अमूमन ये होती हैं, दे आर प्रिमिटिव, दे आर ऑर्थोडॉक्स, दे आर फंडामेंटल. तो वो पाकिस्तानी सोसाइटी तो बड़ी प्रिमिटिव ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है. उसके अंदर दीज टू मूवमेंट्स, देयर आर फ्यू सेकुलर फोर्सेस एंड द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज having fundamentalist orientation, orthodox orientation. तो ये इस वजह से religious political parties जो हैं, they are having in one way or the other their say in national politics. तो अगर society is getting secular, तो ultimately secular representative would be elected, and this is how the constitution will be turning towards the secularism. और अगर the society is becoming orthodox, and orthodox representative would be elected. ये आपने देखा था 2002 के इलेक्शन के अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल आ गया था और उनके पास इतनी ज्यादा मेजॉरिटी थी. They wanted to bring their own kind of demands being incorporated in the constitution, and 17th amendment के अंदर उसको incorporate किया गया था क्योंकि वो बार्गेनिंग की गई थी. तो ये मैं आप अच्छा इसके ऊपर कोई और बात करना चाह रहे हैं. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स के तहत लेस अमेंडमेंट्स दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत मोर अमेंडमेंट्स दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है बेटा, ये इस पे कोई बात करना चाह रहे हैं? नहीं करना चाह रहे तो आगे चलते हैं. तो आगे चलते हैं, ये बात हमने की. उसके बाद एज आई टोल्ड यू, इफ देयर वर 30 और 34 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स वो हुई थी, तो उनमें से जस्ट 25 दे आर इन ऑपरेशनल कंडीशंस में हैं. अच्छा, याद रखिएगा, फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स दे वर बीइंग ब्रॉट, they were being incorporated in Pakistani constitution by the founder, the mentor of 1973 constitution, Zulfikar Ali Bhutto.
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने विद इन द स्पैन ऑफ 5 or 4 years उसने 7 amendments, first 7 amendments they were being incorporated under his age. तो वो किए गए थे. इसकी जो क्रोनोलॉजी अगर हम डिस्कस कर पाए तो अभी 17th अमेंडमेंट्स या 18th अमेंडमेंट से पहले पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द ओनली एंटिटी अंडर हिज एज के 7 amendments were being incorporated. लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट एंड देन आफ्टर द एज जो नवाज शरीफ के एज में स्टार्टेड फ्रॉम 2013 to 2018, इसके दरमियान टोटल नवाज शरीफ हैज प्रपोज्ड 11 amendments in our constitution. Nawaz Sharif के ages में total 11 amendments they were being proposed, या 12 amendments, and out of these 11 or 12 proposed amendments, 10 amendments they were being incorporated in constitution, 1973 constitution. This is how Nawaz Sharif के age में ज़्यादा amendments they are being proposed and incorporated, and now Nawaz Sharif became the only person under whose age more amendments they are being proposed in 1973 constitution. इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, he was having 7 amendments in his credit. तो अगर अब हम देखें कि what kind of changes were being incorporated under different amendments in our constitution, तो इस चीज को अगर हम देख पाएं तो वो अब जरा इसको देखते हैं. फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो 7 amendments थी they were being incorporated during the age of Zulfikar Ali Bhutto. In first, यानी कि याद रखिएगा 280 आर्टिकल्स में कंसेंसस था, एंड आउट ऑफ, अच्छा एक जगह पे मैंने पढ़ा ये अनामली है कि टोटल 135 पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन द डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय सेनेट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर मैंने पढ़ा है 125 people they voted in favor of 1973 constitution, or out of 146, or the day when the draft was proposed there were 128 people present and 3 people they were not willing to give their vote in favor of constitution. तो ये अच्छा, अब जब ये constitution बन गया, the very first amendment जो बनाई गई in 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बनाएगी वो मई 1974 को हुई, और इट इज नोन एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एंड अंडर दिस अमेंडमेंट टोटल 14 आर्टिकल्स दे वर बीइंग अल्टर्ड, म्यूटेड, चेंज्ड और अमेंडेड. टोटल 14 आर्टिकल्स ये मई 1974 को ये इनकॉर्पोरेट की गई. और इसका जो हाईलाइटिंग एस्पेक्ट था वो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज they were being stopped from participating in anti-nationalist agenda, and every political party was made necessary to show its sources of income, whether they are getting its जो sources हैं of income from the anti-nationalist segment of society or nationalist segment of society, or they are being financed from the internal sources or they are being financed by the external sources. So ये दो ज़्यादा important थी कि एक political parties, आपको मैंने बताया इस रेफरेंस को आपने याद रखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी पाकिस्तान में जिसको नेशनल अवामी पार्टी नैप, अवामी नेशनल पार्टी जो बाद में बनी नेशनल अवामी पार्टी नैप, जिसको पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एंटी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करके जुडिशरी से इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था. और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना चेंज किया जो बन गई अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी चेंज हो गई, अवामी ANP में हो गई. डॉक्टर अब्दुल वली खान और इस तरह खान अब्दुल गफ्फार खान उसके मेन प्रोपोनेंट थे. फिर उन्होंने चेंज किया सर बचा खान के टाइम में. हाँ, ये 73 के अंदर ये जब ये जो इमरजेंसी लगाई थी ना, तो उसमें इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जेलों में फेंक दिए थे. और जो फर्स्ट बलोचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था और KPK के अंदर NWFP में, उसके अंदर बोथ ये जो लेजिस्लेचर थे फेडरेटिंग यूनिट के, दे वर बीइंग डिसॉल्व्ड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो है. एवरी पर्सन वाज पुट बिहाइंड बार, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको. तो उस जमाने ये जो अमेंडमेंट है ये दैट इज रिफ्लेक्टिंग दैट सिनेरियो
ये याद रखना है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये वो सिनेरियो, लेकिन उनको अबक्शन में रखा क्यों था? असल में रीजन ये थी कि जुल्फकार अली भुट्टो क्योंकि ही वाज द सिविलियन फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो प्रेसिडेंट भी था, फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, तो ये उसका ये मानना था कि already the country is being disintegrated on the name of maximum provincial autonomy. Now NWFP and Balochistan Provincial Assembly, they are going to follow the same track, and they are going to first they are going to demand more and more provincial autonomy, and ultimately they would be going for the liberation. ये liberation की और तरफ सर चले उसने गए। जुल्फकार भुट्टो ने उस वक्त जो है मतलब केपीके और ये बलूचिस्तान में मार्शल लॉ भी लगा दिया था। हाँ, मार्शल लॉ लगा, मैंने बताया, और मार्शल लॉ लगा कर ही प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व किया था। तो अंडर हिज विजडम दिस इनिशिएटिव वाज बीइंग टेकन, जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है, एंड 14 आर्टिकल्स दे वर बीइंग अमेंडेड विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, विद रेफरेंस टू द फाइनेंसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ज्यादा हाईलाइटेड थी, और भी इसके अंदर चीजें थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, बाद में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे एट लेंथ तब देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकंड अमेंडमेंट भी 74 में आई, पहली आई 73 के अंदर, 74 मई के अंदर, दूसरी आई 74 सितंबर में। इसके अंदर 2 आर्टिकल्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 2 आर्टिकल्स दे वर बीइंग अमेंडेड। ये वो अमेंडमेंट है जिसके तहत Ahmadis, Qadianis, they were declared non-Muslim community. Non-Muslim community declare कर दिए गए थे। मेरी बात समझ आ रही है? और आर्टिकल 106 और आर्टिकल 206 ये इन दोनों को चेंज किए गए थे 106 के तहत, और फिर जो सीट्स वर बीइंग रिजर्व्ड इन असेंबली माइनॉरिटीज की। मेरी बात समझ आई है बच्चों? ये यस सर। मई में आई, ये सितंबर में आई। और उसके बाद थर्ड अमेंडमेंट जुल्फकार अली भुट्टो लेकर आया इन 1975 फेब के अंदर, जिसके अंदर अगेन 2 आर्टिकल्स फॉर बीइंग अमेंडेड। और ये बेसिकली इस अमेंडमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि थ्रू दिस अमेंडमेंट जुल्फकार अली भुट्टो वांटेड टू हैव मोर एंड मोर इमरजेंसी पावर इन हिज हैंड। ही वाज बिकमिंग अ डिक्टेटर इन आवर कंट्री। और उसने ये अमेंडमेंट लेकर आया क्योंकि पीपल्स पार्टी वाज इन मेजॉरिटी, थ्रू coercion, force, lust for power and money, tempt for power and money, उसने ये अमेंडमेंट लेकर आई, एंड आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 232 वर अमेंडेड, जिसके तहत जो ये इसने ये हासिल कर लिया पावर कि ही वाज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट एनी पर्सन टू whom he declared as एंटी नेशनल, या जिसको he perceived कि this person is national security risk, तो उसको ये ऑर्डर किया जा सकता था कि विदाउट एनी रीजन द पर्सन कुड बी टेकन इनटू कस्टडी एंड डिटेन्ड, कि जब तक वो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे भी लिया जाता है, बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट वाज बिकमिंग डिक्टेटर, he was not democratic anymore, he was becoming a dictator in his temperament। और ये 2 अमेंडमेंट जुल्फकार अली भुट्टो की टायरनी की जो अप्रोच है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। और दूसरी बात ये इसको अंदर बताया गया कि इफ ही परसीव दैट द कंट्री इज गोइंग टू फेस सम डिजास्टर और सम पॉलिटिकल अनरेस्ट, and large part of the country is being paralyzed because of that political unrest, then Zulfikar Ali Bhutto was allowed under this amendment to impose emergency in the country, but he was supposed to take first consent from the joint session of the parliament, और parliament के अंदर again his political party was in domination, so ultimately तो he was going to become a tyrant, a dictator in our country। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 232 के तहत। और 4th अमेंडमेंट जो ये लेकर आया वो, अच्छा ये अमेंडमेंट आई थी जैसे मैंने आपको बताया फेब के अंदर, एंड द 4th अमेंडमेंट केम ऑन द सेम ईयर इन नवंबर, और उसके अंदर जो टोटल 11 आर्टिकल्स दे वर फर्दर बीइंग अमेंडेड, सब्स्टिट्यूटेड, अल्टर्ड, चेंज्ड और थ्रोन आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 मोर शेड्यूल्स, आर्टिकल शेड्यूल 1 और आर्टिकल जो और शेड्यूल 4 को भी चेंज किया गया। टोटल 11 आर्टिकल्स एंड 2 शेड्यूल्स दे वर बीइंग चेंज्ड
और ये क्या बेसिकली क्या था कि जो ये जो पॉलिटिकल जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग डिटेन्ड और एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू परसीव दैट पर्सन एज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, तो उसको आप अरेस्ट कर लेते हैं, जो मैंने आपको थर्ड अमेंडमेंट में बताया। तो फोर्थ अमेंडमेंट में क्या हुआ कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे जिनको पॉलिटिकल रिस्क डिक्लेयर करके जुल्फकार अली भुट्टो अरेस्ट कर रहा था, वो बेल ले लेते थे। क्या ले लेते थे? बेल ले लेते थे कोर्ट से। तो इसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स अंडर दीज आर्टिकल्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाज यूजर्प्ड, उसको यूजर्प कर दिया गया, एंड द राइट टू गिव बेल, द राइट टू टेक बेल फ्रॉम द कोर्ट, उसको भी इम्यून कर दिया गया। एंड कोर्ट्स दे वर बीइंग डिबार्ड फ्रॉम देयर दिस अथॉरिटी टू प्रोवाइड बेल टू पॉलिटिकल डिटेनीज। मेरी बात समझ आ रही है? और अदालतों को भी कह दिया गया कि उस अमेंडमेंट के तहत यू कैन नॉट गिव बेल टू द पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या हो रहा था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त फोर्थ अमेंडमेंट में के तहत ये सर, ये हुआ। तो बड़ा गंद मार रहा था सर। हाँ, जुल्फकार, देखो ना, नजर आ रहा है। इसी अमेंडमेंट्स की तहत की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो इज नोन एज द बुचर ऑफ बलोचिस्तान, उसको बुचर ऑफ बलोचिस्तान भी कहते हैं। इन अमेंडमेंट्स के तहत उसने सत्यानाश कर दिया था। अब गले देखें, अगले साल सितंबर में तकरीबन आफ्टर 11 मंथ्स उसने सितंबर में 1976 में another fifth amendment was being proposed and being incorporated, and total 16 articles they were being amended, altered, substituted, muted और changed, ये याद रखिएगा। और एक आर्टिकल और शेड्यूल 5 को चेंज किया गया, जिसके तहत जुल्फकार अली जो भुट्टो जो था वो he was willing to curtail the power of judiciary, not only of Supreme Court but also of High Court। और उसकी इन अमेंडमेंट्स के तहत द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको कर्टेल कर दिया गया, और जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ऑर्डर देते थे। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? क्या हो रहा है? जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस वक्त, तो ये याद रखिएगा। रिमेंबर वन थिंग, ये वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन आवर स्टैंस के वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्टी व्हाट जुल्फकार अली भुट्टो वाज डूइंग एट दैट टाइम। Might be at that time the environment was feasible to go for these kind of amendments, or these amendments were desirable। यहाँ पे बैठ के हम उसको गेज नहीं कर सकते, but the fact is कि by every criteria executive is not required to do these sort of things। ऐसे नहीं करना उसको चाहिए था। और आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में ये कहा जाता था कि he was very intolerant towards the domestic politics। He was not willing to see his opponent standing in front of him। तो अगर हम ये जो फर्स्ट 5 अमेंडमेंट्स को देखें, तो ये सारी की सारी ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, वन पॉलिटिकल लीडर वाज ट्राइंग टू सप्रेस हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट, एंड इफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स दे वर गोइंग टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कोर्ट्स, तो उनको वो फिर एग्जिस्टिंग कोर्ट्स की पावर को भी कर्टेल करता गया। मेरी बात समझ आई? अब आते हैं अगले साल जनवरी के अंदर, यानी आफ्टर 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में क्या हुआ? another 6th अमेंडमेंट केम। उसके अंदर 4 आर्टिकल्स को चेंज किया गया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका जो हाईलाइटिंग थी क्या थी? हाउ टू कंट्रोल जुडिशरी इन 4 अमेंडमेंट में। आर्टिकल आपको पता है 179, 195, 246, 260 जो थे, they were directly related to the judicial process in Pakistan। कोई रिटायरमेंट ऑफ एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, अगर कोई ओपोनेंट है, इसके तहत क्या था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 65 इयर्स फिक्स की गई थी, अब कहा गया कि 62 पे रिटायर कर दो इनको, ओपोनेंट कोर्ट में रहना नहीं चाहिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडर 6th अमेंडमेंट was being curtailed, इसको कर्टेल किया गया बाय जुल्फकार अली भुट्टो। अब एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान की जुडिशरी के हालात भी बड़े खतरनाक रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जुडिशरी क्या करती थी? अगर कोई एक्टिविस्ट जज आके बैठ जाता था, वो तो काम करने नहीं देता था एग्जीक्यूटिव को। तो जुल्फकार अली भुट्टो की ये मेंटालिटी भी हो सकती है कि ये तो जुडिशरी जो है ये एग्जीक्यूटिव को काम करने नहीं दे रही, तो इसको न्यूट्रलाइज करो किसी न किसी तरीके से। और फिर
उसी साल जनवरी के बाद मई के अंदर 1977 में क्या हुआ, 7th अमेंडमेंट आई, जिसके 2 आर्टिकल्स को चेंज किया गया, आर्टिकल 101 और आर्टिकल 245, जिसके तहत अगर if judiciary is going to declare, political parties, they are going to declare that the chief executive is no more having a majority in parliament and he is going to lose his popularity. तो 7th amendment के तहत executive got the authority that he can show himself that he is as much powerful as before and he can go for referendum in the country instead of going for new elections. election करने के बजाय referendum. याद रखिएगा जुल्फकार अली भुट्टो ने ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस अमेंडमेंट के पीछे बैकग्राउंड क्या था, वो ये था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने 5 साल के बाद इलेक्शन होने थे, 6 साल गुजर गए और इलेक्शन नहीं करवा रहा था। 70 के अंदर इलेक्शन हुए, 77 आ गया और इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे और वो इलेक्शन के बजाय रेफरेंडम की तरफ जा रहा था इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर पावर इन हिज हैंड। और ये जो 7th अमेंडमेंट थी वो 2 चीजों पे वर्क कर रही थी। एक तो giving the authority to executive to go for a referendum in order to prove his popularity and legitimacy, and the second thing was to stop the judicial system of Pakistan to give any kind of decision against this initiative. तो आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया। तो बच्चों ये मेरी बात समझ आएंगे, फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स में क्या हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और ये जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने एज के अंदर किया। और उसके बाद आपको पता क्या हुआ, जुलाई के अंदर क्या हुआ था, मार्शल लॉ लग गया 77 में, और फिर यानी कि 2 महीने के बाद मार्शल लॉ लग गया और इसको वाज पुट बिहाइंड द बार्स। तो ये था एनवायरनमेंट फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स का। इसके ऊपर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, क्या अंडरस्टैंडिंग आई, क्या समझ आई आपको, क्या कहना चाहते हैं आप लोग इसके ऊपर? अच्छा मैं ऐसे करता हूँ सर, इसका ये कि मतलब बर्बादी की शुरुआत ये पॉलिटिकल एंटिटीज ने की है सर। ठीक है ना, 7,000 रुपए का उसके लिए। अच्छा, और सर लेकिन हम सोलली उस पे उस तरह तो नहीं उसको मैं टारगेट कर सकती कि उसने जो भी अमेंडमेंट्स की उसके पीछे उसके कोई अपने पर्सनल बेनिफिट्स थे, या हो सकता है कि जैसे कि आपने पहले कहा कि उस वक्त कॉन्टेक्स्ट इस तरह का हो कि ये सारे स्टेप्स जो है वो लेना ज़रूरी हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे स्टेप्स एसेंशियल थे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हर स्टेप के पीछे जो उसका इंटेंशन था वो कोई गलत या फॉल्स किस्म का था। बहुत अच्छी बात की आपने। This is what we can say now, since we were not present at that time over there, to see whether it was basically the totalitarian age of Zulfikar Ali Bhutto or he was acting democratically. लेकिन I believe कि whether you were a true executive of the state democratically or whatsoever, you were not supposed to curtail the basic fundamental rights of people. So only yes, one sir, thing, यही बात है सर, सप्रेशन तो नहीं आती ना सर डेमोक्रेसी में। क्या आप सर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करे सर, और सर आप इलेक्शंस ना करवाएं सर, ये तो कोई डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं होती। हाँ, तो मैंने ये कहने का मतलब है जो तहरीम बात कर रही है वो भी मेकिंग सेंस, और जो आप बात कर रहे हो वो भी मेकिंग सेंस। So as a students of constitutional law, what we have to have a neutral approach. We can have an overwhelming impression that by every criteria these amendments were just for the sake of empowering the executive, the Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto at that time. तो हो रही थी, ये हमें एक dominating impression आता, and we are going to believe कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन somehow there might be some requirements of the age because of which Zulfikar Ali Bhutto was forced to go for these sort of things. वो गया था, तो इस वजह से भी हुआ। और इसके अलावा कोई कॉन्सेंट कोई बात करना चाह रहे हैं करते हैं, अदरवाइज आगे। उसके बाद बच्चों जो कुछ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, चलो ये तो जो हुआ सो हुआ, ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो फिर 8th अमेंडमेंट आई है 1985, उसने तो पूरे के पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत एसेंस जुल्फकार अली भुट्टो के एक्शन से रह गई थी, जो उसने जो नहीं कर पाया, उसका सत्यानाश कर दिया जुल्फकार अली भुट्टो ने।
कहा यह जाता है अंडर, ये मैंने जैसे आपको बताया, जुल्फकार अली भुट्टो ऑलरेडी एक ऑर्डर लेकर आ चुका था एंड देन पार्लियामेंट को फोर्स किया टू अप्रूव इट, उसको अप्रूव करो। वो क्या था, कहा यह गया जिस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूं, जिस तरह पीपल्स पार्टी आई 2008 के इलेक्शन में एंड दे वर हैविंग वन एजेंडा ऑन द टॉप ऑफ देयर चार्टर के वी वुड बी रिस्टोरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसको रिस्टोर करेंगे। तो चलो ये जो आपके ज़ियाउल हक साहब आए, he was having the order के रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर, इस ऑर्डर के तहत उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल 65 आर्टिकल्स के अंदर चेंज लेकर आया, जिसको सब्स्टिट्यूट किया, अमेंड किया, ऐड किया, मॉडिफाई किया, डिलीट किया, ओमिट किया, साइलेंट किया, डॉर्मेंट किया, सत्यानाश किया, टोटल 65 आर्टिकल्स को। एंड दी ऑर्डर क्या था, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का ऑर्डर। जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती थी 18th अमेंडमेंट में वी आर गोइंग टू रीशेप, गिव द एक्चुअल शेप टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 8th अमेंडमेंट में लेकर आया। और एंड द मोस्ट हाईलाइटिंग थिंग ऑफ 8th अमेंडमेंट वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज रिप्लेस्ड विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और उसके बाद ये जो 65 आर्टिकल्स के अंदर जो चेंजेस आई हैं, इसके अंदर इस्लामिक कानून को लाने की कोशिश की गई, हाफ कानून को लाने की कोशिश की है, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं इसको कहूं। लेकिन द मोस्ट ड्रैकुलियन एस्पेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट वाज नेक्स्ट 4 elected democratic governments in Pakistan were not allowed to complete their constitutional terms इस अमेंडमेंट की वजह से। आर्टिकल 58 2B, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आपको? Yes, sir. इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। 4 जो पहले नवाज शरीफ आया उसको उतार दिया पीपल्स पार्टी है, अब 1.5 साल काम किया, फिर नवाज शरीफ आया उतार दिया, फिर पीपल्स पार्टी, फिर ये इस तरीके से होता रहा। सत्यानाश आया हमारे मुल्क का इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। और बेसिकली 21 आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दे वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, म्यूट कर दिया गया था। और 65 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था इस में, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और मैंने ये आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी जो 9th अमेंडमेंट आई, ये भी जनाब आपके ज़ियाउल हक दौर के अंदर आई और इसमें 2 आर्टिकल्स को चेंज किया गया। अच्छा, याद रखिएगा 9th अमेंडमेंट वाज अ प्रपोज अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रपोज अमेंडमेंट थी, जो it is not being incorporated, and this 9th amendment is all about the imposing promulgating Sharia law in our country, हमारे मुल्क में। और आर्टिकल कौन से 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। आर्टिकल 203B, आर्टिकल 203D, वो जो शरिया लॉ का मैंने आपको बताया था, ABCDEFGHIJKLMNOPQ वगैरह वगैरह, जस्ट किडिंग। तो ये 2 इनके तहत, और ये जो थी अमेंडमेंट वाज प्रपोज बाय ड्यूरिंग द एज ऑफ ज़ियाउल हक and it was approved by Senate and a time was given के इसको 30 days के अंदर अंदर नेशनल असेंबली would be approving it। लेकिन जब ये नेशनल असेंबली में गया, अप्रूव होने से पहले पहले आपके प्रेसिडेंट साहब ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और ये अमेंडमेंट बन ही नहीं पाई फिर पाकिस्तान के अंदर। समझ आई? वो जो मोहम्मद खान जोनीजो साहब नहीं थे, उसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई थी, ये याद रखिएगा। और फिर वो उधर चले गए, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लगी, आप लोगों को इन चीज़ों का पता। फिर आते हैं आर्टिकल अमेंडमेंट 10 के ऊपर। जो अमेंडमेंट 10 थी वो भी इन्हीं के एज में आई, इन्हीं के एज में, और ये भी 2 आर्टिकल से रिलेटेड थी, 2 आर्टिकल से रिलेटेड। और लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ ये थी कि द इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट must not exceed 130 days। ये अमेंडमेंट क्या थी कि यानी एक सेशन अगर हो गया तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने सेशन ही नहीं होता था पार्लियामेंट का। तो 87 के अंदर ये अमेंडमेंट लेकर आए गए और इसमें कहा गया कि
विद इन 130 डेज के अंदर अंदर इससे ज्यादा सेशन लेट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये होने लग गई। आपको पता है 18th अमेंडमेंट में यू आर ऑलरेडी हैविंग अ बेटर आइडिया कि 110 डेज सेनेट वर्किंग है साल के अंदर। तो 110 डेज मतलब के साल के अंदर 365 डेज में एटलीस्ट सेनेट इज सपोज्ड टू वर्क फॉर 110 डेज, पहले 90 डेज की लिमिट थी इसके ऊपर। खैर, तो अब आते हैं 11th अमेंडमेंट के ऊपर। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर। नहीं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, इसको यार ये समझना है, ये बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन असल में मैं चाहता हूँ यस सर, अल्लाह करे ये कॉन्स्टिट्यूशन आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और इसको आपने जुबानी याद करना है और कभी भूलना नहीं है इसको आपने। अब आते हैं कौन सी अमेंडमेंट थी? 11th अमेंडमेंट के ऊपर। 11th अमेंडमेंट जो थी वो भी पास की गई 1988 के अंदर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और लेकिन ये नहीं हो सकी, दूसरी जगह से पास नहीं हो सकी। और ये जिस तरीके से मैंने आपको शरिया लॉ वाली बताई वो भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकी, प्रपोज थी, और ये भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकी बट इट वाज प्रपोज्ड। और ये इट वाज रिलेटेड टू द चेंज इन आर्टिकल जस्ट 51, जिसके अंदर द विमेन सीट्स ऑन कोटा एंड रिजर्व सीट्स, इसके अंदर ये कहा गया था कि the women reserved seats in National Assembly and Provincial Assemblies they must be increased, और एक फिगर डिक्लेयर किया गया था एटलीस्ट 20 सीट्स इन नेशनल असेंबली दी जाएं खवातीन को रिजर्व सीट्स की बुनियाद पर, कोटा की बुनियाद के ऊपर, और इसी तरीके से एक पैटर्न फॉलो किया जाए प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि द गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया कि वी आर आल्सो गोइंग टू present the similar kind of bill in the legislature, so there is no need of bringing a separate amendment. We are already working on this, so ultimately women they would be getting more representation reserved seats के ऊपर दे देंगे। तो इस वजह से फिर इसको अगले हाउस में टेबल नहीं किया गया एंड ये प्रपोज ही रह गई, बट इट वाज नॉट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, ये याद रखिएगा। उसके बाद 12th अमेंडमेंट आते हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ये आ रही थी 12th अमेंडमेंट, और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आप लोगों ने जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर, अपने हाथ में लेकर आना चाहता था, इसी तरीके से नवाज शरीफ फ्रॉम द डे वन ही वाज आल्सो पावर ऑब्सेस्ड, वो भी ही वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर। तो चाहे वो, और इसका भी हमेशा से एक ही चीज के ऊपर रहा कि जजेस को कंट्रोल करो, जजेस को पकड़ो, जजेस की इंडिपेंडेंस को कर्टेल करो, जजेस की एज को बढ़ाओ, जजेस को पैसे दो, उनकी सैलरीज बढ़ाओ ताकि वो हमारे फेवर में आए। तो जो 12th अमेंडमेंट थी दैट वाज रिलेटेड टू द आर्टिकल 212B एंड सम चेंजेस वर बीइंग proposed in the 5th शेड्यूल, जो में सर्विसेज का आपको ऑलरेडी पता है दैट आर रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफ जजेस, तो वो आप लोगों ने पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो ये आर्टिकल जो अमेंडमेंट 12 थी, इट वांटेड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन आर्टिकल 212B एंड शेड्यूल 5 रिलेटेड टू द सैलरीज सर्विसेज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये उससे आर्टिकल सिर्फ जजेस से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा, यानी जुडिशरी से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा। 13th अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट 97 में 4 गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी हैं, फिर इनको होश आती है कि आर्टिकल 58(2)B को खुदा के लिए खत्म करो, प्रेसिडेंशियल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको खत्म करो। फिर इसने आर्टिकल 52 ये जो 13th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 58(2)B जिसके तहत प्रेसिडेंट वाज हैविंग द पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, उसको नेशनल असेंबली को डिसॉल्व, और प्रेसिडेंशियल पावर रिलेटेड टू आर्टिकल 101, 112 एंड 243 जिसके अंदर प्रेसिडेंट वाज सपोज्ड टू टेक सम कंसेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इन ऑर्डर टू इंपोज एनी काइंड ऑफ एक्शन इन द कंट्री। तो ये आर्टिकल ये जो 13th अमेंडमेंट थी वाज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन आवर कंट्री, डिक्रीजिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गिविंग मोर पावर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरी बात समझ आई है बच्चे? ये जो 13th अमेंडमेंट थी ये इनको 97 में याद आई, और 98 में आप लोगों को पता था क्या हो गया, वो आप 98, 99 के अंदर। उसके बाद then we are going to talk about another thing that is related to the 14th amendment.
14th amendment was again passed, lekin it was being proposed in 1997, but it was very peculiar while giving more and more authority to the executive and the political parties of the state. ये जो 14th amendment थी, it was all about the defection clause, article 63A, and you are already having a better idea. Nawaz Sharif जब भी government में आता है, he wanted to have more and more power in his hand. So 18th amendment में भी आपको पता है article 63A के तहत defection clause, if any person is not going to reconcile with the authority of the political leadership, and he is not going to follow the line of political party, that person would be expelled from not only party but also from the legislature. So ye jo 14th amendment thi was again related to the article 63A defection clause. If any person who will not be reconciling with the party position, that person would be expelled from the party, he would be expelled from the parliament membership as well. So yaad rakhiyega, as I have already told you, same like on the footprint of Zulfikar Ali Bhutto, Nawaz Sharif wanted to have more and more power in his hand. ये बन जा रहा जी सर। ये 14th अमेंडमेंट जो है सर, इसकी मिसाल एक ये कि पिछली की जो गवर्नमेंट थी सर बलूचिस्तान में सर, हाँ सर वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई सर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ, जब वो फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई सर। सर उसमें ये था कि पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी जो है सर, हाँ। सर इसका ये इनके 14 मेंबर्स थे सर, तो ये नून लीग के साथ थे सर। इनका एक मेंबर शायद बिक गया था या जो भी हुआ सर, वो उसने वोट कर दिया नो कॉन्फिडेंस में सर तो उसको डिप्राइव कर दिया गया फ्रॉम मतलब उसकी सीट भी छीन ली गई। एक तो पार्टी से वो गया और वो सीट आप सही कह रहे हैं। ये 14th amendment में सेम काइंड एंड द 18th amendment में भी article 63 basically political parties, they are willing to have what democracy in country, but they are not willing to see democracy within their political ranks. So this is something that was happening over there. Article 63A by every criteria is not requirable, is not desirable. If political party, the leadership of any political party is faulty, is not having wisdom, is going to have his own national interest being protected, then how can a person who is having sanity, wisdom would be reconciling with the line of party? Have you not seen that the intellectuals of political party, they used to stand in front of the guy who is just having 21 years of age. Bilawal Bhutto की बात कर रहा हूँ. Senator Raza Rabbani is supposed to stand in front of him while like जैसे नमाज पढ़े होते हैं. So is the case with these other people. So ये Article 63A is just to give maximum strength to the political party, and it is just going to give dictatorship. So political parties, they are going to have what? Dictatorship in their political parties. They are not willing to see democracy in their country. So ये जो थी उसके बाद अब आते हैं एक और बड़ी important चीज के ऊपर, जो 15th amendment है, it was being proposed but was not being passed. पास नहीं की गई, और ये वो एज है when Mullah Omar in Afghanistan used to blackmail again and again to Nawaz Sharif के वो ये कहता था, see what I am doing in my country. A lady fully laden with ornaments would be starting his travel from Kabul to Kandahar, and there would be nobody, and nobody will dare even to look at her. And what is happening in our country? What is happening in your country? तो इस चीज से persuade हो के Nawaz Sharif wanted to bring some change in our constitution, and Article 2A was to be altered with Article 2B, and a change was being proposed in 239 article. Or yet it was all about while imposing Sharia bill and imposing and introducing the laws according to the Quran and Sunnah in our country. ये लाना चाह रहे थे. अच्छा याद रखिएगा, it was being passed by the National Assembly because Nawaz Sharif was having 2/3 majority at that time, but it was not being passed by the Senate. Senate pass नहीं हो सका क्योंकि in Senate Nawab Akbar Bhukti was sitting over there. Nawab Akbar Bhukti was not willing to give one vote to the Nawaz Sharif, और इसके वोट की वजह से और एक और बंदे की वोट की वजह से Nawaz Sharif was not able to become the Amirul Momineen. वो Amirul Momineen नहीं बन पाया था, और अगर ये शरिया बिल बन जाता, the slot of Prime Minister was to be replaced with the Amirul Momineen.
और मुल्क में लगाना था, और नवाब अकबर भुट्टी और एक और बंदे की वोट की वजह से ये सेनेट से बिल पास नहीं हो सका। और दिस इज हाउ द 15th अमेंडमेंट वाज बीइंग पास्ड by the 2/3 majority because of the majority of no-ling in parliament, that it was not being passed by the Senate. Over there, two people resented over this bill, and among those two people, Nawab Akbar Bhutto was very important. ये मैंने आपको बताया, और उसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था ये नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहा है, हम इसको वोट नहीं देंगे, नवाब अकबर खान भुट्टी। तो गेट माय आइडिया गाइस, कोई बात कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, कोई बात करना चाह रहे हैं? आई एम ओपन फॉर इट। ये बात अच्छी थी कि बुरी थी? सर अच्छा है, रोक दिया है सर। अच्छा, और कोई बात? हाँ जी रिजवान अकबर, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक सरदार साहब की जिंदगी को पढ़ा, तो सर सरदार साहब लिबरलिज्म के ख्यालात रखते थे, तो सर उनको ये तो नहीं कहना चाहिए था उन्हें, बल्कि नवाज शरीफ की राय का एहतराम करना चाहिए था। बाकी अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ, आपके मुल्क का अमीरुल मोमिनीन अगर नवाज शरीफ होता तो कैसा होता? सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाकी नवाज शरीफ साहब जितना इस्लामिक सिस्टम से मुतमिन थे या उससे मुखलिस थे, तो कल आपको तारिक जमील साहब ने बता ही दिया होगा। ओह माय गुडनेस, छोड़ दो यार इस बात को, अल्लाह माफ करे। और मौलाना तारिक जमील साहब भी तो माशाल्लाह जो कुछ कर रहे हैं आपको पता ही है आजकल। यार आजकल वो बड़े मुतनाज़ा बन गए हैं सर। अच्छा एनीवे, अब आते हैं 16th अमेंडमेंट के ऊपर। 16th अमेंडमेंट के ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 16th अमेंडमेंट। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, 16th अमेंडमेंट वाज ऑल अबाउट गिविंग more representation to the people from the backward areas of Pakistan, means giving more quota in services, national services. So Article 27 was amended under the 16th Amendment, and जिस तरीके से आपको पता है Sindh is divided into rural Sindh and urban Sindh, and urban Sindh is having low quota because they are having more facilities while living in urban areas, and the rural Sindhis they are not having more and more facilities in their area. So is the case with some people in Balochistan and people with the FOTA and some backward areas of Punjab, as well as some GB, the people of GB. So basically, in 16th Amendment, it was decided that ये जो quota, which is basically being sections during the age of Zulfikar Ali Bhutto, that must be extended for further 20 years. इसको extend किया जाए, and only MQM he was not willing to favor this bill. वो इस bill को because MQM used to believe that in Sindh population is almost 50-50%. 50% people of Sindh they are living in urban areas, 50% people they are living in rural area. तो ऐसा नहीं है, इसको change होना चाहिए, and equal seats they must be given. Equal seats होनी चाहिए. MQM voted against it, लेकिन somehow this amendment was being passed and incorporated in 1973 constitution. अब आते हैं very important amendment of 1973 constitution that is related to the 17th amendment, जिसको 17th amendment वही कहा। ये legal framework order, मैंने आपको जैसे कब बताया था, less amendments they are being proposed and incorporated in 1973 constitution by the act of parliament, but more amendments they are being incorporated through the presidential order. जो मैंने बताया था, out of 34 proposed amendments, 24 amendments they are being incorporated in 1973 constitution by what you call the presidential order. So legal framework order 2002 का by Pervez Musharraf, that was fully being incorporated in 17th amendment, और 17th amendment के अंदर इसको लेकर आया गया। And 17th amendment में what you see, the whole draft of 13th amendment was replaced with the draft of 17th amendment, and parliamentary system was reversed back again with the presidential system, and Article 58(2)(b again was restored along with Article 41, Article 52(a) and other amendments or other articles, they were being muted or they are being put out of the constitution. तो ये बनाया गया था in 17th amendment. तो ये आप लोगों को पता है 17th amendment was the most highlighting feature of 17th amendment was that more and more powers they were being taken from the chief executive from the parliamentary system to the chief executive of the presidential system. अब आते हैं, and you have already gone through this thing again and again from me,
the 18th Amendment, total 102 changes in 70 articles, the largest ever amendments ever being incorporated in 1973 Constitution. 102 changes in total 70 articles. इसके ऊपर the biggest ever objection that is being raised again and again under against the 18th Amendment is that it has totally changed the quarter of Constitution. And if the government was requiring to go for such a large scale change in 1973 Constitution, then the government was allowed government was supposed to go for referendum. Referendum में जाना चाहिए था उसको, instead of going for the act of parliament. And remember one thing, this 18th Amendment was not being passed with the discussion, क्योंकि in 1973 Constitution it is written that whenever act of parliament was being taken for constitutional amendment, then the treasury benches and the opposition benches, both benches, they would be going for the discussion, and after discussion the bad part of the proposed amendments, they would be excluded out of the Constitution, and then the most important part, positive part, they would be incorporated. And 18th Amendment was being passed without discussion from the floor of Parliament, and 102 changes, the largest ever. Remember one thing, that amendment was being brought by 26-member committee of Senator Raza Rabbani, and total more than 900 people organization, they were being consulted in order to bring this amendment. So People Party usually take the merit that not only parliamentary parties but also non-parliamentary parties, they were also being incorporated in 1973 Constitution में बुलाया, इसके अंदर उनका consent लिया गया था. Somehow you are already having better understanding. अब आते हैं जल्दी से, मुझे पता बहुत लंबा होता जा रही है 19th Amendment के ऊपर. 19th, remember one thing, अभी भी 18th Amendment is being termed as more dangerous than the 6 point of Sheikh Mujibur Rahman. इसको शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट से भी ज्यादा डेंजरस कंसीडर किया जाता है. रीजन बीइंग क्या है? इसकी रीजन ये है कि सेंटर इज बीइंग मोस्ट द पावर ऑफ सेंटर इज बीइंग शॉर्टन्ड एंड गिवन more power to the provincial units, and there are some very particular and critical subjects which are also being given to the provincial. For instance, health is given. अब कोरोना के अंदर provincial governments they can't do anything. Central government के पास ज्यादा powers होने चाहिए. Education के ऊपर there must be one uniform curriculum पूरे मुल्क में होना चाहिए. ये भी दे दी गई हैं. तो इस वजह से इसको कहते हैं कि this is how it is going to distort the federal system. लेकिन there are many good things as well. बहुत अच्छी चीजें भी हैं. अब कुछ जो चीजें मैंने आपको बताया था, you people have already learned it again and again, कि to appoint any judge in the Supreme Court was basically considered a Herculean task. एक judicial committee was being made under the leadership of Chief Justice. Then the parliamentary committee was being made or having more members. और ये stalemate हो जाती थी. इस चीज को remove करने के लिए पीपल्स पार्टी के दौर में जजेस अपॉइंट ही नहीं हो सके थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एड हॉक बेसिस पे जजेस को लगाना पड़ा था. देन इन 2011 के अंदर क्या हुआ, इस प्रोसेस को रिड्रेस किया गया एंड टोटल 26 चेंजेस वर बीइंग मेड इन टोटल 6 आर्टिकल्स ऑफ 1973 इन 2011. ये 19th अमेंडमेंट है. इट वाज ऑल अबाउट हाउ टू अपॉइंट जजेस इन लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. इसके प्रोसीजर्स को इसने डील किया है. तो ये somehow this was a good process. I used to make a criticism over this amendment when I used to talk about 18th Amendment with my students. Then I used to say again and again, by every criteria, it was not a workable procedure of appointing judges in Supreme Court and High Courts. So isko somehow in 2011 it was being redressed, but total 26 changes were being made. उसके बाद आते हैं 20th Amendment. 20th Amendment was being incorporated in 2012 and total 8 articles were being amended, muted, altered, changed, deleted. And 2 schedules, Schedule 2nd and Schedule 3rd, with reference to the caretaker setup and how to conduct fair and free elections in Pakistan. So 20th Amendment is all about the consensus over the caretaker setup and how to conduct free and fair elections. याद रखिएगा पहले क्या होता था, इससे पहले जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती थी वो अपना केयरटेकर सेटअप लगा के जाती थी. इसके अंदर इन 20th अमेंडमेंट इट वाज सजेस्टेड कि
not only the opposition party but also the treasury benches. The prime minister and opposition leader, they would be sitting together in order to find out what would be the caretaker setup during the election process. ये होगा तो ये अच्छा हुआ था. पहले जैसा कि नून लीग की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है 2008 में, and it was going to have its completion of term in 2013. तो ये जो जरदारी साहब होते हैं ये अपना सेटअप लगा के चले जाते, तो अल्टीमेटली रिगिंग होती है इलेक्शन में, इलेक्शन के अंदर रिगिंग होती थी, तो उस चीज को रोकने की ये कोशिश की गई. तो ये भी अच्छी अमेंडमेंट थी बाय एवरी क्राइटेरिया. उसके बाद आते हैं 21st अमेंडमेंट. यू पीपल हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट के नेशनल एक्शन प्लान 20 नेशनल एक्शन प्लान प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए. एंड आर्टिकल 175 that is related to the responsibility and function of judiciary in Pakistan, उसको immune कर दिया गया with reference to the phenomena of terrorism. और इसमें डिक्लेयर किया गया the act of जो terrorism है, those phenomena they will not be adjudicated by the existing judicial system of Pakistan. उसको their cases would be sent to the special court. उसकी वजह क्या थी? जितने भी टेररिस्ट कोर्ट्स के जो डिसीजन होते थे उनमें अगर 100 टेररिस्ट they were being arrested, only 2% or 5% they were being tried and executed, and rest of 95% they used to get acquitted. They used to get acquitted from the existing courts. तो इसमें बताया गया terrorists they would not be tried by the existing judicial system of Pakistan. They would be tried by through what? Through the special courts. ट्रायल कोर्ट्स के तहत किया जाएगा. समाओ अच्छी बात थी. उसके बाद आते हैं अमेंडमेंट 22, बहुत इंपॉर्टेंट थी. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इट वाज डिसाइडेड दैट एन इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में अपॉइंट किया गया होगा. 5 मेंबर्स होंगे. एवरी प्रोविंस वुड बी हैविंग इट्स ओन इलेक्शन कमिश्नर और 9 आर्टिकल्स दे वर बीइंग अमेंडेड. और पाकिस्तान में कोशिश की गई, और जिस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के दौर में आए हैं, इससे पता चला कि नून लीग के दौर के जाते हुए जैसे पता चला कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जितने भी फेयर करवाने की कोशिश करें, नॉट पॉसिबल. देन 23rd अमेंडमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ 21st अमेंडमेंट. आपको पता था 21st अमेंडमेंट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जस्ट 2 years. 2 years के बाद संसद क्लास की तरह इट हैज टू गो डाउन, इसको गो डाउन जाना था. लेकिन टेररिज्म वाज स्टिल गोइंग ऑन. देन इट वाज डिसाइडेड दैट 21st अमेंडमेंट मस्ट अगेन बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसी के कंटेंट को 23rd अमेंडमेंट में विद फ्यू मॉडिफिकेशन इन इट वाज इन बीइंग इनकॉर्पोरेटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 23 अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. 24th अमेंडमेंट इन 2017 was all about, आपको पता है 2017 के अंदर सेंसस मर्दमशुमारी हुई थी. पॉपुलेशन पहले जितनी भी जो सीटें एलोकेशंस थी वो 1998 के सेंसस के मुताबिक थी. तो 20 साल के बाद ऑलमोस्ट एक सेंसस हुआ, तो न्यू डेमोग्राफी वाज चेंज्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज to be made, and more seats were to be increased in not only the provincial assemblies but also in the national assembly. So in 2017 seats according to the census were being increased and article 51 was changed. Now ladies and gentlemen, coming to the last amendment that is related to the 21st amendment. And the 21st amendment jo hai, it's all about the merger of FATA into the KPK. Article 1 was changed, some parts with reference to the FATA they were being omitted, and article 51 was changed. So ladies and gentlemen, out of 30 or 34 proposed amendments, 25 amendments they are in operational condition in 1973. सर article 1 और कौन सा चेंज हुआ था सर? Article 1 was चेंज बिकॉज ये फाटा से पाकिस्तान की फेडरेशन की बात करता है, तो फाटा का नाम था, तो फाटा का नाम चेंज किया, ओमिट किया गया. एंड आर्टिकल 51 एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस. मुझे पता है ये थोड़ा लंबा हो गया है इसके ऊपर, लेकिन समहाउ टुडे वी हैव we have a detailed analysis what kind of changes were being incorporated in 1973 constitution under different amendments. Iske upar if you are having any kind of question, please let me know.
मुझे बताइए प्लीज। ऑल ओके गाइस? सर आपने दो तीन आर्टिकल्स बताए कि वो प्रपोज थे लेकिन पास नहीं हुए थे। मैंने सर लेकिन अमेंडमेंट्स बताई आपको, अमेंडमेंट्स बताई थी जी आपको। सर। दो तो शरिया लॉ से रिलेटेड है, आप लोगों को पता है। एक जी सर। अमेंडमेंट 15 थी शरिया लॉ से रिलेटेड, जिसको भुट्टो उसने भुट्टी साहब ने नहीं दिया था। जी सर। और उसके बाद एक और 9th अमेंडमेंट थी, आपको पता है, जो पास नहीं हो सकी आपसे। 9th जो थी, 11th अमेंडमेंट मोर स्पेसिफिकली नेशनल असेंबली में खवातीन से रिलेटेड थी, वो भी पास नहीं हो सकी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो 9th अमेंडमेंट थी। तो 3 अमेंडमेंट जो हैं बेसिकली कौन कौन सी, 9th हो गई, 11th हो गई, 15th हो गई, ठीक है। जी सर। जी 9th अमेंडमेंट के भी नहीं हो सकी थी, और फिर नेशनल असेंबली से वीमेन सीट्स के बारे में भी नहीं हो सकी थी, शरिया लॉ से रिलेटेड भी नहीं हो सकी थी। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लें, गो थ्रू कर लें, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये सारा इसका कोशिश करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दिस आर्टिकल, दिस लेक्चर इनटू अ फॉर्मेट व्हिच इज more compatible with the YouTube structure। तो उससे रिलेटेड ये हो जाएगा।